uh, participants who are with us, all the participants, I welcome all the participants who are working with us and joining continuously or frequently our webinar series. I also welcome our eminent speakers of the today. So the participants who are present made the success of this webinar series. I will thankful to again and welcome them for their commitment and with us today. I also welcome to INA President Mr. YP Singh Saab, because of his efforts and commitment. This webinar series is organizing in this era of the COVID. बहुत एफर्ट करने होते हैं इसके लिए. मैं आईएनए प्रेसिडेंट मिस्टर वाईपी सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. उन्होंने नर्सरी बंधुओं के लिए, ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज किया. मैं आईएनए के सेक्रेटरी मिस्टर मुकुल त्यागी के लॉट ऑफ एफर्ट से, इनकी मेहनत से, कंट्रीब्यूशन से ये पॉसिबल हो पाया. उनके लिए भी थैंकफुल हूँ. एंड टुडे आई आल्सो थैंकफुल टू INA core team because of their commitment. Things are happening today in the series of the webinar series Seed of Future. We have 48th webinar, and all we are initiated for every success. Now I am thankful to Shivangi and Mr. Ji also. Now I am going to Ms. Shivangi to present INA activities. Ms. Shivangi. Good afternoon, everyone. I welcome all of you for the 48th webinar. क्या बोल रहे हो? Please mute yourself, Ria. Are the slides visible? Yes, visible. Yeah, please. Yes. Okay. The Indian Nurserymen Association is a registered non-governmental organization, and it is a lifetime committee member of Confederation of Indian Horticulture under National Horticulture Board, Ministry of Agriculture. The INA is the leading national association for the green industry in India and works tirelessly to connect the industry across states and other segments. It has built a network of strength, support, and success, and it represents the entire horticulture and landscape industry. The Indian Nurserymen Association was founded by late Sri Arjun Das Agrawal in the year 1987. And he was also the first president of the Indian Nurserymen Association. After its inception, it has worked tirelessly to connect nurserymen across the country, and thus around 2006, it started taking shape at the national level. And since then, it has gained members from across the country as well as international participation after the formation of the current governing council in 2019. The current president of INA is Sri YP Singh. He was elected as the 9th president in 2019. He is one of the instrumental figures in bringing INA to its current position. He was one of the few members associated with the inception of Indian Nurserymen Association and has worked very closely with the founder and the first president of INA, late Sri Arjun Das Agrawal. After starting his career as the horticulturist and further established the iconic Greenways Nursery, which is now the largest plant nursery in the North India. The association maintains the connections and clout needed to impact legislative and regulatory decisions for the benefit of the horticulture and other associated fields and our consumers. It leverages knowledge and skills to its members, supported by its ongoing research to be the leading authorities in the business of growing and selling quality plants and related products and services. The association works to help its members grow the business of plants, related products, and services. It promotes the expertise of fellow professionals,
development of quality products, and inspires better design. The thematic function of the INA is PR and advocacy, networking and partnership, capacity building and study tour, publications and papers, events and exhibitions, research and development. It strives to be influential advocates, authoritative educators, be collaborative across the industry, and forward supporters of plant businesses. During the COVID distress, the INA was called by Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare over video conferencing meeting to discuss over the problems which the plant nursery sector is facing due to the lockdown and other consequences of COVID-19 pandemic. INA was in regular contact with the ministry and since lockdown was advocating them in regard to the hardships faced by nurserymen. Shri Y.P. Singh, the president of INA, is tirelessly pushing the agenda for the upliftment of the nursery sector through National Horticulture Board, Government of India, and been submitting proposals and demands in order to bring many financial schemes for the nursery sector. Demands from National Horticulture Board. A national level survey could be conducted by NHB for the identification of fruits, vegetables, and ornamental plant nurseries and allied landscape sector. Reallotment of subsidies to nurseries and polyhouses, revival of Confederation of Indian Horticulture and its involvement in major decision-based policies, development of training centers for people from nursery, garden and landscape sector, setting up of 4 international standards, nursery hubs in India, and development of research and development center by government for nursery. The Ministry of Agriculture under Export Promotion Council for Horticulture Products approved the formation of Flowers and Plant Export Council of India, which will be an autonomous body under the ministry to promote the horticulture export of plants and flowers from India. The membership drive of Indian Nurserymen Association has now gone global. It is available in countries apart from India like Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, Bangladesh, and many other countries. To avail the membership, one can log on to the website www.indiannurserymen.com/membership. The Indian Nurserymen Association is into the publication of monthly magazine Nursery Today since last many years. It is also into the publication of its directory for the horticulture industry every 3 years. The Indian Nurserymen Association is regularly conducting its webinar series under the Seed for Future webinar series. And today we have assembled here for the 48th webinar. Now I would like Dr. Sharma to take over. Thank you. Thank you, madam. Today I introduce our wonderful speaker, eminent scientist, Mr. Uttam Sohane Saab. Uttam Sohane Saab is an eminent entomologist. He is working with Krishi Vigyan Kendra, Kosbad Hill in Dhanu, Palghar in the Maharashtra. He did his post-graduation from Navsari Agriculture University, Navsari, and he has wide experience of 20 years experience in the field of agricultural research, extension, and marketing. He is known expert over Indian integrated pest management, organic farming, and honeybee keeping. He has written 2 books on modern beekeeping technology and sapoda cultivation. He is known for more than 200 articles in different magazines and papers. He delivered 50 radio talks and 14 TV shows on different aspects of entomology. He is also well-known yoga teacher and organizing other activities for the better health of the human being. Now I welcome Professor Uttam Sohane Saab. Over to Sohane Saab. Good afternoon, all of you. I'm thankful to first INA, Indian Nurserymen Association, President Dr. Y.P. Singh sir. Then also thankful to Dr. Sharma, Shivani, my friend Sachin Brahmankar, to give a chance to deliver some knowledge to our some nurserymen. Thank you.
I just share my screen here. Okay, is okay. So today's topic is pest and disease management in landscape gardening. Dr. Sharma, is audible? Visible? Uttam साहब, you are audible. Thank you. Okay, You are okay, audible. okay. So आज का जो टॉपिक है, हम लैंडस्केप बनाते हैं, बहुत गार्डन बनाते हैं, तो इतना अच्छा घर बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई कीड़ा लग जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो परेशानी हो जाती है। इतना सुंदर गार्डन बनाने के बाद अगर वो खराब कर दिया किसी कीड़ी ने, तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए जरूर हम उसकी वो जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, डिसीज है, उसकी पहचान कैसे करें, उसको मैनेजमेंट अच्छी तरह से कंट्रोल कैसे करें, उसके ऊपर हम आज अगले कुछ मिनट में ध्यान देते हैं। ये जो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, दीज आर सम मेजर इंसेक्ट पेस्ट इन लैंडस्केप गार्डनिंग एंड also nursery also. These are some sucking pests including aphids, thrips, jacid, whitefly, mealybugs, scale insects. Some major insects are there like whitefly and thrips is some major pests in sucking groups. Another group is larval insect pest. It is a leaf feeder insects like Spodoptera and Helicorpa. Then internal leaf feeder like a leaf miner. Then internal borer like a stem borer. And also root feeder like a root borer and termite. Termite is a major pest in the landscape garden also. We'll see. And some non-insect pest, that is the mite pest, red spider mite, yellow mite, and eriophyte mite. These are some pests we will see one by one. This is a sucking pest. First, we have to identify the proper identification is most important before the controlling this. This is the aphids, yellow and black aphids, then jacids. These are some. This is the group of the sucking pest which suck the cells from the plant parts, and then उसके बाद ये जो ग्रीन जो मैटर है वो अगर वो सक करते हैं तो उसके बाद वो प्लांट मुरझा जाता है और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब लार्वल पेस्ट है। इसके बाद हम देखें कि इंटरनल फीडर जो है, जैसे लीफ माइनर बताया, पत्ते के अंदर से जरबेरा का प्लांट्स है और बहुत सारे है अंदर लीफ के अंदर वो माइंस करता है, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। फिर स्टेम बोरर इज मेजर पोस्ट इन फ्रूट क्रॉप्स एंड जो ट्री स्पेसीज। स्टेम बोरर बहुत सारे ऐसे ट्री स्पेसीज है जो 40-50 साल के बड़े बड़े ट्री मर जाते हैं, तो स्टेम बोरर का प्रॉब्लम है, सभी हम देखेंगे वन बाय वन। दीज आर सम थ्रिप्स। थ्रिप्स में जैसे फ्लावरिंग कोई भी क्रॉप्स है, जैसे roses and some chrysanthemum, all flowering plots get infested due to the thrips. एक तो फूल में जब थ्रिप्स लग जाते हैं तो उससे स्प्रिंकलिंग हो जाता है, अंदर की तरफ वो मुरझा जाते हैं। फ्लावर फूल में पत्ते में भी आता है, लीव्स के ऊपर वो भी उसका अपवर्ड डायरेक्शन में उसका कर्लिंग हो जाता है। थ्रिप्स का वो मेजर आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये थ्रिप्स की लाइफ साइकिल है। और एफिड्स जैसे एफिड्स का जैसा ऐसा कलर हो जाता है, जैसे कि येलो है, ग्रीन है, ब्लैक थ्रिप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रिप्स। ऐसे पौधे के अपर पोर्शन जो टेंडर लीफ है, टेंडर लीव्स है, शूट पोर्शन है, वहां पे ज्यादा वो रहेंगे और वहां से जो भी ग्रीन मैटर वो अगर सक करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। ये ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी हम सकिंग जो ग्रुप है, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वो प्लांट के अपर साइड में रहेंगे जहाँ पे जो सकुलेंट पोर्शन ज्यादा रहता है, तो वहां से जो भी सक करेंगे ग्रीन मैटर जो भी सकुलेंट, उससे पौधे का नुकसान होगा। सभी का जो भी माउथ पार्ट वह सकिंग टाइप्स का होता है। ये व्हाइट। अभी मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। मैनेजमेंट में कोई भी सकिंग पेस्ट का, सभी मैंने जो बताया, उसका 2-3 तरह का मैनेजमेंट। एक तो कल्चरल प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसा होगा और केमिकल कंट्रोल कैसा होगा, सभी तरह से हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टिकी ट्रैप्स है, येलो एंड ब्लू स्टिकी ट्रैप वी कैन यूज। तो येलो स्टिकी ट्रैप में जो एफिड्स, जैसिड एंड व्हाइट फ्लाई अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दिस कलर,
अभी यहाँ पे देखिए अपने कितने सारे इंसेक्ट यहाँ पे जमा हुए है ना। तो ऐसे हम अगर लगा देते हैं 30-30 फीट के अंदर तो इससे कंट्रोल हो जाता है। अगर ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाएंगे तो उसमें थ्रिप्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका हम उपयोग कर सकते, नॉन केमिकल मेथड में बहुत ही अच्छा इसका उपयोग, और फार्मर नर्सरीमेंट करती भी है इसको भी। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऐसे कि वर्टिसियम लेकानी एंड ब्यूवेरिया बेसियाना, वर्टिसियम बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें, जो इट इज द फंगस। अगर हम स्प्रे करते हैं तो जितने भी सकिंग पेस्ट हमने बताए उसके ऊपर उसका टच होता है, शरीर पे लग जाता है, तो शरीर के ऊपर इसकी ग्रोथ हो जाती है फंगस। जहाँ पे हम ये मिडल वाला जो फोटो है वो देखेंगे, इसकी ग्रोथ हो जाती है और वो 3 to 4 डेज में वो मर जाता है कोई भी। तो इसमें कोई रेजिस्टेंट अब तक डेवलप नहीं हुई, जैसे ये बायोलॉजिकल है वर्टिसियम। ओके, देन वी कैन यूज द बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड like a neem oil or pongome oil is 5 ml per liter of water we can spray. In case of chemical methods, we can use the acetamiprid 0.5 gram per liter or imidacloprid 0.5 ml per liter or diphenthurion 1.5. सभी में स्टिकर यूज करना बहुत जरूरत है। स्टिकर से क्योंकि केमिकल की एक्टिविटी भी ज्यादा समय रहती है, बढ़ती है और स्प्रेड अच्छा होता है, स्टिकिंग एजेंट भी काम करते हैं। फिर अलग हम देखेंगे मैनेजमेंट में, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर क्रॉप जैसे कि मेज लगा इधर। जैसे हम मेज का फायदा ऐसा कि मेज के ऊपर जो भी हमारे मित्र कीटक जो है, जो भी इको फ्रेंडली जो कीटक है, तो इसके प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स बहुत सारे इसमें सर्वाइवर हो जाते हैं। जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपाई स्पाइडर है, यहाँ पे जो फोटो है वो कीड़ी को खा जाते हैं इस तरह से। ये भी ट्रैप क्रॉप दूसरा क्रिसेंथेमम यहाँ पे है, इसका भी फायदा होता है। जितने भी एफिड्स है वो पूरे अट्रैक्ट हो जाते हैं और खा जाते हैं। तो हमारे नर्सरी में ऐसे कोई भी पौधे अगर रहते हैं जैसे क्रिसेंथेमम, सभी एफिड्स वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेज लगाने थे उसमें तो भी वो तो जो हमारे उपयोगी जो कीटक है वो प्रेडेटर्स आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक देखा प्लास्टिक मल्च का देखा है। प्लास्टिक मल्च ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जहाँ पे सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो जहाँ ये सकिंग पेस्ट हो वो नहीं रह सकते। तो सकिंग पेस्ट कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस ड्यू टू दिस सनलाइट। ऊपर से भी सनलाइट है, नीचे से भी सनलाइट मिरर जैसा वो काम करता है प्लास्टिक या सिल्वर मल्च पेपर, तो उससे फायदा होता है। अभी मैनेजमेंट देखेंगे, जो भी हमारे मित्र कीटक जिसको प्रेडेटर्स बोलते हैं। प्रेडेटर्स यहाँ पे लेडी बर्ड बीटल मैंने दिखाने की कोशिश किया है। दिस इज द लार्वा ऑफ लेडी बर्ड बीटल व्हिच फीड्स ऑन दी सम स्मॉल एफिड्स एंड एग्स ऑफ द लार्वल पेस्ट। यहाँ पे एडल्ट लेडी बर्ड बीटल व्हिच फीड्स ऑन दी दिस एफिड कॉलोनी, ये भी बहुत देखा रहेगा। दिस इज आल्सो लेडी बर्ड बीटल व्हिच फीड्स on the aphids sucking pest. This is a larva. This is the larval stage of the lady bird beetle. This is egg. These are also predators. This is the chrysoba. Is egg. Then larva. This is eggs. This is egg. This is larva of the predator. This chrysoba. This is pupa, and this is adult. This is life cycle. Which all these two stage. This is larval stage and adult stage are feeds on the sucking pest. Is also useful. Yes, so one another parasitoids which is also useful is number of predators, number of parasitoids. These are which live in the next topic, that is the sparring whitefly, which is the some threat because of some ornamental plants, big plants like palm group, is a coconut and other palm varieties which are infesting to the whitefly. Is the big range host, big range. So this is the coconut plants and ये जो स्पारिंग व्हाइटफ्लाई है इसका नेचर ऑफ डैमेज, यहाँ पे उसके एग दिख रहे हैं, इससे पैटर्न ऑफ एग लेइंग, इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड शेप। ओके, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द एग लेइंग व्हिच स्टिक्स विद द ग्लू लाइक सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस। एंड जब वो जो व्हाइटफ्लाई ये बार व्हाइटफ्लाई सक करती है, उसमें जितना भी सक करती है उससे ज्यादा मतलब 70 to 80% जो मटेरियल वो बाहर निकलती है वो स्टिकी रहता है, स्टिकी। और स्टिकी की वजह से ब्लैक सूटी मोल्ड डेवलप होता है ऊपर की तरफ। ब्लैक सूटी मोल्ड अगर डेवलप होता है ब्लैकिश कलर, इज द कोकोनट
लीव्स, तो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। एक स्पायरिंग व्हाइटफ्लाई का डिसएडवांटेज है। इसको कंट्रोल करने के लिए इन बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द बेस्ट मेथड, वी कैन यूज द वर्टिसिलियम लेकानी और ब्यूवेरिया बेसियाना, दैट इज द फंगस, वी कैन यूज 5 ml or 5 grams per liter, which is available in liquid also, available in powder form also. Then we can use the neem oil or pongamia oil at the rate of 5 ml per liter. This is non-chemical method. And if we go to the chemical methods, then we can use acetamiprid, imidacloprid, or pyrethrum, or other also number of insecticides we can use this. But we first go to the biological method and non-chemical methods. This is some natural control methods, natural predator and parasitoids, which is available in the nature. This is Encarsia species, 2 species, which kill the pupal stage of the sparing whitefly. Then predator is available in nature, that is Nephaspis oculatus, which is also available in nature. But we use the more and more toxic chemicals than predators, we will kill the predators. So we first go to the natural control or biological control. This is another big pest, or let's say is a big threat, that is the mealybugs, which is available, which is infesting in all flowering crops like the jasmine and other croton, also different crops like roses, flowering crops also, cactus also. This is some fruit crops like papaya, mango, citrus, all plants. Okay. This is some management practices of the mealybug. This is cultural control. Sanitation is very important. Cleanness, which is very important. Then the removal of these mealybugs from the plants with the help of brush or hand picking. Avoid the excess use of nitrogen fertilizer, because nitrogen fertilizer which leads to increase the green matter in the plants and which attract the sucking pest like mealybugs also, and other sucking pest also. Then this homemade like spraying with soap water, which also is cool here. The next, that is biological control. We can use the spraying of Verticillium lecani as a bio-insecticides at the rate of 4 ml to 5 ml per liter. It's very effective. If we spray the Verticillium, then after 4 to 5 days, all mealybugs and sucking pest other also will kill. Then use as a directive, that is neem oil or neem product, 2.5 ml to 5 ml. It's some dose depend on the ppm. It is normally 2.5 ml per liter as a directive. The neem oil also. Then chemical control, in case that is spraying of fish oil, and then first we use the fish oil, because fish oil which dissolve the skin or hair-like structure on the mealybugs. So spraying of fish oil, then after half an hour, you can spray the acetamiprid or imidacloprid or other any insecticide like dichloroas or chlorpyrifos or propanophos, any insecticide. But we use first spray the fish oil, or we can use the sticker also, or soap agents, any soap agents. But biological control is very important, like Verticillium lecani is very useful. The next, non-insect pest, that is the mite. There are different types of mites are present, like red mites, yellow mites, eryphoid mites also, different ornamental crops and landscape. Here, this is the red mite. The habit of the red mite, that is the it creates the webbing underside the leaf and flowers also. This is some photographs. Here are mites in vegetable nursery. This is the life cycle of the mites. Then we go to the control measure or management. First, that is the cultural and biological method. That's maintain the humidity or moisture. If we increase the humidity or moisture in the landscape or any other crops or in nursery also, then mites cannot create the web and it disturbs the life cycle of the mites. So maintain the humidity is very important. Now, how we maintain the humidity? That is water spray or use of the sprinkler in the garden. It is very effective. So if we use the sprinkler, then mite population cannot increase. Then spraying of the Verticillium lecani, that is another, there is a biological control. We can use
for sucking period also, and in case of mite also, Verticillium leccani. Then as a directive, it is very useful. This is chemical method. This is list of the miticides we can use the for control of the mites. That is dicopol, abamectin, spirox, mesiphene, then fenpyroximate, phenazaquin. These are the different miticides available in the market. You can use any of these. But जब एक जगह पे अगर इन्फेस्टेशन ज्यादा है माइट्स का और वहां पे कोई लेबर काम करता है और दूसरी नर्सरी में जाता है तो माइट्स लेकर जाता है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए. उसके शरीर पर, उसके कपड़े पर कोई भी हथियार है उसके ऊपर माइट्स का स्प्रेड होता है जल्दी, वो ध्यान में रखना चाहिए. हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो माइट्स एक जगह से दूसरे जगह हम वेक्टर न बने, देखना है. दिस इज अनदर पेज, दैट इज लीफ एंड प्लांट पार्ट्स फीडर्स. दैट इज द here two major pests, that is Helicoverpa and Spodoptera. This is some attractant plants, that is marigold flowers which attract the female Helicoverpa to laying the eggs. So this is, we can use the also as a trap crop. This is also another trap crop for the attractant crop for the this is Spodoptera littora. This is the castor crop. So Spodoptera littora, the female lay eggs on the leaf of the underside of the leaf of the castor. Okay. This is the light trap. You can use the light trap to attract the nocturnal insects like Helicoverpa, Spodoptera, and other different types of insects. But this light trap we use only 3 to 4 hours in evening times, like 7 p.m. to 10 p.m. only 3, not whole night, because after that some natural enemies which attract to light traps and that will kill. The second photographs, this is the tulsi plants which attract the some beneficial insects like Trichogramma, Nepenthes, Bracon brevicornis, and other some predators and parasitoids, because they use the pollens of the tulsi plants. So this is also can use as a for beneficial of the predators. This is some birds, so we can help of the birds to control the insects. These are different types of birds. So we install the bird purchaser or to seed the birds, just like this wooden seed. This is the light trap. Management of certain Helicoverpa is the collection and destruction of the infested plant parts. Then sanitation is very important. Installation of the pheromone traps which attract the male adults, and planting of the trap crops like marigold and castor, use of the trichocards. So these are some. Sir, no PPT visible. PPT not visible. Not visible. Yeah, not visible. It's visible, sir. I please check your connection. It's visible for most of the speakers. Most of participants. It's visible, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. Go ahead, sir. In case of chemical some spraying, in case of spraying method, this we can use the HNPV, nuclear Helicoverpa nucleopolytrosis, or SNPV, Spodoptera, NPV, then Imamectin, Indojacar, Novaluran, Spinosa. This is the big range we can use. This is the trichocards. We can use the trichocards to control all the larval pest. This is the Trichogramma, the small tiny insects which search the eggs which are found in the field and puncture the eggs and lay their eggs inside the egg of the pest. So this is also we can use. It is available in some laboratories like universities. This is some photographs when we use the biological control like Verticillium and Beauveria and Metarhizium, then which this is the fungal growth of the larval body, this cadaver. Okay. This is the NPV, dead larvae of NPV, symptoms of NPV, and this is some nematode we can use to control the pest. This is another pest, that is leaf miner, which found on different plants in ornamental or landscape. This is a leaf miner which feeds inside the leaf parts and underneath of the leaf surface.
So this is a Gerbera luce. This is the life cycle, egg, larva, pupa, and adult of the leaf miner. So this is some photographs. This is a larva of the leaf miner. This is in case of this management or control method. We use the yellow sticky trap which attract the adult leaf miner and control. Then use the plastic mulching, the sprinkler method, which is also useful. Then this repellent some insects like neem oil, pongam oil, then bebamectin. Triazopus is a triazopus chemical. This is the activity of the triazopus, that is a translaminar action. When we spray the upper side of the leaf, then it goes direct inner side translaminar from top to bottom direct. This is another pest found on the palm trees, coconut and areca palm and water palm and different palm. This is the red palm heel and rhinoceros beetle. This is the two pests are very big feet. This pest, red palm heel, rhinoceros beetle, which kills the one insect kills the up to 10 plants. This is the control measure. This is the trap, which is called aggregation pheromone traps, which attract the male and female both insects. So it is called as aggregation pheromone. This is a red palm heel. This is rhinoceros beetle. This is we can see here. This is the number of insects which attract and kill by these traps. This is another snail. Snail also found in ornamental plants or found in the landscape in the rainy season. So it feeds on the succulent or green plant parts like leaves, bark, fruits, any green plants. Due to bisexuality, is high production rate this snail and feeding at night hours. This is also major pest. In case of management practices, broadcast the tobacco powder in night when snail comes out for feeding. Then hand collection and picking of the snails and application of metaldehyde tablet. When we use the application metaldehyde tablet or metaldehyde like a save color, जब हम ये मेटलडेhyde यूज करते हैं ऐसा ये इसके ऐसे कॉइलिंग उसको छोटे छोटे ये रहते हैं जैसा भेल खाते हैं ना ऐसे तो ऐसे हम डालते तो एक नाइट में जितने मर जाएंगे स्नेल उतना ही यूज होता है, दूसरे दिन काम नहीं करता। फिर नाइट टाइम में डालना है वो मेटाल्डेट जब डालते हैं, दिन में काम नहीं करेगा क्योंकि नाइट में पूरा दिन में वो छुपी रहती है, अलग अलग जगह पर स्नेल छुपी रहेगी, रात में बाहर निकलेगी तो रात में डालना है और एक दिन में वो एक नाइट में ही मर जाएगी। टोबैको डस्ट का अगर उपयोग करते हैं तो उससे भी मर जाती है। और दूसरा हम चूना कैल्शियम कार्बोनेट और ये मारते हैं मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इसका भी उपयोग करते हैं, चूना मोरचूर इसका उपयोग भी करते हैं, ब्रॉडकास्ट को भी स्नेल मध्य। नेक्स्ट मेजर पेस्ट दैट इज अ टर्माइट। Termite is a very important pest in case of landscape gardening. So you can use the word that is silent destroyer in the landscape. This is a termite infest to lawns, ornamental plants, and tree plants. It hesitates to the workers in the garden. Termites damage to the walls and homes and furniture and different products. Termite management. Remove food sources. Termite eats cellulose, the main ingredient in the plant matter. So like dead plants, dead trees or cut trees. This means that any wood material found around the home and yard or in case of landscape garden can serve as a food source and attract for termites. So remove the rotting stumps, dead trees and roots and other wood debris in the yard. This is very important. Remove of the food sources of the termite, that is very important. The second, that is excess moisture, which is helpful to increase the population of the termite. So termites are dependent on moisture to survive, and they thrive when given access to areas where excessive moisture. As a result, it's important to ensure that
there is proper drainage around the home to avoid water accumulation. Third is protective barriers. Termite barriers serve as a first line of defense against infestation. Liquid termicides create a treated zone in the soil in which termites forage and bring termicides back to the colony. These barriers can be disturbed, however, when homes are re-landscaped or regarded. When new soil is brought into the yard for this purpose, it will not be treated. अभी barrier करना है तो कैसे करना है? Some natural ways of eliminating termites. Some natural ways. This is vinegar. Vinegar is the wonder material for your home. Vinegar also it repelled. It acts as a repellent action with termite. Then borax or we can call it as a borax powder, or which is available in the market. Sodium borates, which kill the termites. Or boric powder, so boric acid, that is a boric acid, which is easily available in the market. Then orange oil also is full, kill the termite. Wet cardboards, sunlight, perimeter barriers, take preventive measures. These are some. This is a chemical method. Chlorpyrifos. This chemical is very effective to control the termite, and all termite control agencies which is used is chlorpyrifos only in different concentration. Chlorpyrifos 2% is ready to use, which is available in the market, and chlorpyrifos 50% also available, 20% also available, is dilute in the water, and we can spray or not spray, but we can drench where mites are available, and we use in the season of the winter also and summer. These two seasons very important. Then in case of biological control, to control the or manage the termite pest, this is a Beauveria bacillae is very effective, or we can use the metarrhizum. These both are the fungus. This fungus we can drenching. We drench into the soils and at the rate of 5 ml per liter of water. Then after 4 to 5 days, this fungus will grow on the body of the termite, and termite will kill. This is the methods. Thank you. This is my presentation. Thank you. Thank you, Professor Sohana Saab. Thank you for sharing a wonderful knowledge with us. One question shall I take from Mr. Bin Manuel. Usage of bioinsecticide in nursery sector. Sir, I think we should take the questions at the end of the session. Okay, no. Take the questions collectively. Now I invite Mr. Bahubali, Dr. Mahmood Bahubali. आज जो हमारे दूसरे स्पीकर है डॉक्टर बाहुबली मैंगवे का मैं स्वागत करता हूं, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जैनापुर में कार्यरत है. हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. आपने अपना एमएससी और पीएचडी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है. आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्षमता पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जैनापुर में, जो कि एमपीकेवी राहुरी से एसोसिएटेड है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान में आपके पास कॉलेज प्रिंसिपल का कार्यभार है. डॉक्टर बाहुबली ने एसपी फाउंडेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के में एज ए साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट किया है. आप एनसीईआरटी के रिसोर्स पर्सन भी हैं. आपको 5 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार अलग अलग जर्नल्स में बेस्ट रिसर्च पेपर पे मिला हुआ है. आपके नाम पे 18 रिसर्च पेपर और 14 पॉपुलर आर्टिकल है. आज डॉक्टर बाहुबली स्टूडेंट मैनेजमेंट इन लैंडस्केप गार्डनिंग के ऊपर चर्चा करेंगे. लैंडस्केप गार्डनिंग में सुशोभन में पोषक तत्वों का विशेष महत्व होता है. एंड काम आएगा. प्लीज डॉक्टर बाहुबली. Thank you, sir.
Thank you, Sharma sir. First of all, I will thankful to Indian Nursery. Mr. Bahubali. Yes, sir. Yes, sir. I'm audible? Yes, sir, audible. Yes, sir, audible. Yes, listen. Thank you, sir. I firstly thank You are audible. Please, sir. Please. Yes, Indian yes, Nursery audible. Association for giving this opportunity to share my knowledge in the field of nutrition management in landscape gardening. So as of all, everyone knows in landscape, we have number of plants, number of operations and a variety of planting schemes. And accordingly, the nutrition management, all management practices are dependent. The important thing if we talk about the Indian industry landscaping, the nutrition management is one of the aspects is mostly neglected or not taken into consideration in large scale during planning management also. So here I am going to highlight few things. First of all, as we know, plants require different material. Generally, plants themselves produce the food, which is sugar to the photosynthesis. But what we give them externally, they are generally known as nutrients. So nutrients are the substance which are required by the plant normal growth and reproduction. If we talk about the plants, so generally these are the material which is considered for their growth and development. Whereas if we talk, say about the nutrition, that is sometimes chemical compounds for need for growth and metabolism of organism. When we talk about the plants, here we first go through. There are two photographs. We are showing one is on left side and another is right side. So these photographs which you are seeing, these are before and after they are fertilized or manure or treated with the right nutrition. So these are the basic differences. Why we require nutrition management in landscapes. If we talk about the plants or in this landscape industry, what is very important for the plants or in this landscape industry? It's visual appearance, not the especially when we talk about landscaping, because landscape is all about related to the visual quality of the plants, and the visual quality of the plant is directly proportionate with its nutritional quality or nutritional fulfillment. So when plant achieve its right size, right shape, right color of the foliage, when they are nutritionally sufficient, or we can say nutritionally fulfilled, or they get sufficient quantity of nutrition. So here there is the list of some of the important nutrients. So when we talk this carbon, hydrogen and oxygen, these three are the basic nutrients which plants get from air, water, which is not required to supply. Apart from that, the nitrogen, phosphorus, potash, these are the primarily basic elements which require in large quantity, and after that sulfur, calcium, magnesium, and in recent years silicon, which is identified as essential nutrient. These are called as macronutrients, which requires in large quantity, and other remaining like iron, manganese, zinc, copper, boron, these are required in small quantity. So they are known as a micronutrient. In recent years, cobalt and nickel those are the two elements which are also identified, which are required by the plants for different metabolic activity. So here I shown one picture where one plant is supplied with sufficient quantity of nutrients, which is flourishing, giving flowering, growing in very good conditions. But in another plant, which is not supplied with these nutrients, it still getting for its growth, may getting water through rainfall, but still it's not growing. So these nutrients play important role in different plant metabolism, because we should know there are a number of nurserymen
Here we should know why these are important for, because in nurseries also, I visited few nurseries. Only few nurserymen know what nutrition management should they carried out for management of their crops, because what they are working on professional scales, their value of these plants are directly proportional to the visual appearance and quality. So this is very important to maintain them under good quality. So different nutrients require for different metabolic activity. From some are required for crop development, for binding, for some flowering, for some are required for fruiting, some are required for root development, and their requirements vary with number of things. Like first thing, pH. As we talk about soil pH in industry, in landscape industry, from nursery industry, or when we going for pot industry, the maintenance of soil pH is very important. So whenever earlier talks also when regarding the management or development or establishment of landscapes, हमने देखा है कि जितने भी स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया कि सॉइल का पीएच पता होना बहुत जरूरी है। जब लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रॉपिंग के लिए जा रहे प्लांट्स लगा रहे, तो ये जरूरी है कि आप कौन से प्लांट्स लगा रहे हैं, आपके पास सॉइल का पीएच क्या है, क्योंकि उस पीएच के बेसिस पर उसको क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने पीएच का रेंज बताया 4 to 10, इस पीएच रेंज में ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं वो 6.2 to 7.3 के बीच मिलते हैं। तो जनरली आपको जो सॉइल पीएच चाहिए या मीडिया का पीएच इन केस ऑफ पॉट इन प्लांट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पीएच ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर रहे हो प्लांट्स को दे रहे हो वो उसको मिले। क्योंकि जिस तरह से पीएच चेंज होगा उस तरह से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब आपने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, आपने पौधों को न्यूट्रिएंट डाले, आपने पॉट में प्लांट से उसको न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, लेकिन आपके मीडिया का पीएच अगर सही नहीं है तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पीएच क्या है, क्योंकि आपके सॉइल का आपको पीएच पता है, एक बार आपकी मीडिया का आपको पीएच पता है, तो कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है या कौन सा मैन्योर यूज करना है, किस क्वांटिटी में यूज करना है। अगर ज्यादा एसिडिक सॉइल से या ज्यादा सोडिक सॉइल से, अल्कलाइन सॉइल जिसको हम बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको उसको करेक्ट करने के लिए, पीएच करेक्ट करने के लिए कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है अब अपने पास। तो हम उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हम जो यूटिलाइज मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में, नर्सरी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं वो एक तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होते हैं या वाटर सोल्यूबल, और दोनों की कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है जो फार्मर्स यूज करते हैं रेगुलर फर्टिलाइजर से उससे। तो इसकी वजह से हम जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो जरूरी है कि जितना दे रहे उसमें से मैक्सिमम प्लांट अपने डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करे, लीचिंग लॉसेस कम से कम, क्योंकि जब हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो एक दूसरी चीज होती है कि जब पीएच चेंज होता है तो अनअवेलेबल फॉर्म, मतलब जब भी न्यूट्रिएंट्स मीडिया में अवेलेबल है वो दो फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक तो अवेलेबल या अनअवेलेबल फॉर्म में। तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या अवेलेबल फॉर्म में रहेंगे तो इस पीएच रेंज में रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट डेवलपमेंट का सैंपल का फोटो मैंने डाला है, यहाँ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो पीएच रेंज है, अलग अलग पीएच रेंज में क्रॉप की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो यहाँ पे ये जो पीएच रेंज है ये 7.5 से ज्यादा पीएच रेंज में क्या हो रहा है, 7.5 to 8.5 में क्या हो रहा है, 5 से कम पीएच में क्रॉप की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पीएच 7.5 से नीचे है लेकिन 5.5 से ज्यादा है, इसके बीच में प्लांट की रूट ग्रोथ ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जब रूट ग्रोथ अच्छी होगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छी ही होती है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, हमने देखा अपने प्लांट्स को ऑलमोस्ट 16 मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्लांट्स में या प्लांट्स में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जनरली वो मोबाइल और इमोबाइल ऐसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए कि जो एक जगह से दूसरे जगह प्लांट में मूव होते
उनको मोबाइल कहा जाता है, और जो यहाँ घूम नहीं सकते या फिर प्लांट कैरी आउट नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको इमोबाइल जनरली कहा जाता है। तो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में जनरली हम देखें तो एक जरूरी चीज ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो हमने दिए हैं, अब हमें क्या देखना है इसमें, डिफिशियंसी टॉक्सिसिटी प्लांट्स में कैसे आती है, स्पेशली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। तो जनरली जो ओल्डर लीव्स होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी मिलती है, जो पुराने पत्ते हैं उनमें। उसके बाद जो मिडल लीव्स है प्लांट्स के, उसमें जिंक की डिफिशियंसी पाई जाती है, और न्यू लीव्स में जनरली सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है उनकी, और अपाइकल बर्ड या ग्रोइंग बर्ड्स जो है उसमें कैल्शियम और बोरॉन, इन दोनों की डिफिशियंसी जनरली पाई जाती है। दूसरी एक चीज जरूरी है, स्पेशली जब नर्सरी के लोग हैं उनके लिए, CN रेशियो, जिसको कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो भी कहा जाता है। जब मीडिया का CN रेशियो भी, जैसे जिस तरह से pH जरूरी है, उसी तरह से CN रेशियो भी बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉपर CN रेशियो मेंटेन करोगे तो आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को अच्छा होगा। तो CN रेशियो जैसे ही चेंज होता है वैसे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट्स की वैरी होती है। 4 चीजें यहाँ पे जरूरी हमें समझना है जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक है डेफिशिएंट, दूसरी है इनसफिशिएंट, तीसरी है टॉक्सिक और चौथी है एक्सेसिव। डेफिशिएंट कब होती है? जहां पे हमें प्लांट्स में ग्रोथ में या अपीयरेंस में कुछ सिम्टम्स मिलने चालू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से अपने को लो यील्ड मिलता है या प्लांट की क्वालिटी की इंफीरियर मिलती है, उस वक्त तो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हम कह सकते हैं, मतलब वो उसमें कम है। दूसरा है इनसफिशिएंट। अब इनसफिशिएंट कब कह सकते हैं हम लोग? प्लांट में हमने जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी डाला हुआ है। Essential nutrient are actual in the plant available in, but वो sufficient quantity में नहीं, मतलब जितना चाहिए उतना है नहीं, जिसकी वजह से ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, उसको हम कह सकते हैं इनसफिशिएंट क्वांटिटी मिल रही है। टॉक्सिक कब है? पहले एक्सेसिव देखते हैं। एक्सेसिव कब कह सकते हैं हम? जब इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमने डाला है तो टॉक्सिक सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे, तो जिसमें करस्पॉन्डिंग शॉर्टेज ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स होता है। मतलब जो हम बात कर रहे हैं 17 न्यूट्रिएंट्स की, तो ये इन न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की एक्सेसिव हो जाए तो एक अनदर न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम सुपरमार्केट में जाते हैं और कुछ चीज लेनी है तो भाई ये है तो ये नहीं है। जैसे आपको एक पर्टिकुलर सब्जी बनानी और इस सब्जी के लिए 10 आइटम जरूरी है और मार्केट में गए हो आप, उसमें से 8 आइटम मिलते हैं और 2 आइटम नहीं मिलते आपको, तो आप सब्जी नहीं बना सकते। तो उसी तरह से प्लांट न्यूट्रिशन का भी है कि आपके 16 एलिमेंट 17 जो एलिमेंट्स है उसमें से कुछ एलिमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सेसिव है जो दूसरे प्लांट्स के अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद है टॉक्सिसिटी। तो हम टॉक्सिक कब कब सकते हैं कि जो हमने न्यूट्रिएंट दिया है प्लांट को वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए या उसका इफेक्ट प्लांट ग्रोथ पे सीवियरली हो जाता है। जो टॉक्सिक सिम्टम, जैसे डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट्स में होते हैं वैसे टॉक्सिक सिम्टम्स भी मिलते हैं, और इस टॉक्सिक सिम्टम्स की वजह से कभी कभी प्लांट दोनों कंडीशन में डेथ हो सकती है। डिफिशिएंट कंडीशन में भी प्लांट्स की डेथ हो सकती है, टॉक्सिक कंडीशंस में भी प्लांट की डेथ हो सकती है। इसलिए दोनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्लांट में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है? तो हम पहले देखते हैं ओल्डर लीव्स में कौन से प्लांट्स की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मिलती है। जो पहले बात की तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटैश की डिफिशियंसी है वो ओल्डर लीव्स में मिलती है। लेकिन कहाँ मिलती है? जब एंटायर प्लांट्स में हो, सिम्टम्स ऑन एंटायर प्लांट हो, और सिर्फ सिम्टम्स ऑन लोअर लीव्स ओनली। क्या होता है जब सीवियर कंडीशंस में डिफिशियंसी चालू हो जाती है तो
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी एंटायर प्लांट में मिलना चालू रहती है। तो उसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन में स्पेसिफिकली लाइट ग्रीन कलर हो जाते हैं, लीव्स के लोअर लीव्स येलो हो जाते हैं और ड्राई होके ब्राउन हो जाते हैं, और फॉस्फोरस के केस में पेल डार्क ग्रीन हो जाते हैं। देखिए नाइट्रोजन में लाइट ग्रीन हो जाते जबकि फॉस्फोरस में डार्क ग्रीन हो जाते, कभी रेडिश हो जाते, पर्पल हो जाते, जो आगे हम देखेंगे। ओल्डर लीव्स मैग्नीशियम के केस में एजेस जो है वो पहले येलो होना चालू जाते हैं, लेकिन अंदर जो सेंटर ऑफ लीफ है वो पूरा ग्रीन रहता है। और पोटेशियम में स्कॉर्चिंग या विल्टिंग, जो प्लांट मरने की तरह या धूप में ज्यादा देर आप ज्यादा दिन रखे हुए, हाई सनलाइट जो इंडोर प्लांट्स में आप देखते हो कि जब धूप खड़ी धूप में आप रख जाते हो तो उसमें स्कॉचिंग आता है, उस तरह से स्कॉचिंग होके स्पॉट्स तैयार हो जाते हैं, प्लांट मरना चालू हो जाते हैं, लीव्स डाइंग चालू हो जाता है। जबकि जो अदर प्लांट्स मुझे न्यू लीव्स है उसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं जनरली, जिसमें पहले तो लीफ डिस्टोरेशन और नेक्रोसिस, मतलब लीव्स पे स्पॉट्स आना चालू हो जाते येलोइश, और लीव ड्राई होना चालू हो जाते उस तरह से। तो टर्मिनल बर्ड्स, जो ग्रोइंग बर्ड है वो मरता है, वो जनरली बोरॉन की डिफिशियंसी होती है। बोरॉन डिफिशियंसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए मेजरली बात कर रहे हैं, फ्रूट या वेजिटेबल्स में बात करेंगे तो बोरॉन की डिफिशियंसी जनरली फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें फल फट जाते हैं। टर्मिनल बर्ड डज नॉट डाई, मतलब बर्ड मरता नहीं, लेकिन फिर भी न्यू लीव्स, जो नए पत्ते बर्ड के साथ आ रहे हैं, वो में नेक्रोसिस आ जाती है, कैल्शियम जब डिफिशिएंट हो, और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, और ब्लूइश ग्रीन लीव जब बन जाते हैं वो जनरली कॉपर की डिफिशियंसी होती है। जबकि क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस या क्लोरोसिस जिसे हम कहते हैं, वो जनरली सल्फर की डिफिशियंसी में पूरा लीफ क्लोरोसिस हो जाता है। जबकि इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब वेन स्टोर के पत्तों के बीच का सरफेस जो है उसमें स्टेम शॉर्ट होके रोस्टलिंग हो जाता है जिंक में, और आयरन और मैग्नीशियम केस में नेक्रोटिक स्पॉटिंग नहीं आती, आयरन में और मैग्नीशियम में नेक्रोटिक स्पॉटिंग आती है। वो हम सिम्टम्स आगे देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा। तो यहाँ पे एक बेसिक फिगर बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये बेसिक लीफ है आपका, जो आप एक हेल्दी लीफ हम कह सकते हैं, न्यूट्रिशन जिसके पास सफिशिएंट है वो। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में इसका कलर पेल हो जाता है, जबकि फॉस्फोरस हम देखें तो डार्क ग्रीन हो जाता है। पोटैश पेलिंग होती है और ये नेक्रोसिस हो जाता है लीफ में, इस तरह से जो व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं उसमें। आयरन में पत्ता पूरी तरह से नेक्रोटिक हो जाता है, लाइट कलर में हो चला जाता है। कैल्शियम में वेन्स में नेक्रोसिस क्लोरोसिस होता है, ये वेन्स आप देख रहे जो पेल ग्रीन हो गई। जबकि मैग्नीशियम में वेन्स के साइड में और एजेस में नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, और मैंगनीज के केस में आप पूरे एज पे नेक्रोसिस और येलो पैचेस डेवलप करना चालू हो जाते हैं, जबकि मैग्नीशियम में डार्क हो जाते हैं। तो थोड़ा हम फोटोग्राफ्स देखेंगे कि जिसमें हमें पता चले कि भाई क्या हो रहा है। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की केसेस में जनरली यूनिफॉर्म क्लोरोसिस हम यहाँ देख सकते हैं अजेलिया और के प्लांट्स में कि ये क्लोरोसिस हुआ है, ये जनरली नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में हुआ है, या फिर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में आपको अर्ली फ्लावरिंग आ सकती है, या फिर स्टंटेड ग्रोथ मिलती है। ये यहाँ नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, जहाँ पे फ्लावरिंग बहुत जल्दी आई है और प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई है। उसके बाद पोटेशियम की डिफिशियंसी, पोटेशियम डिफिशियंसी में यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इम्पेशा के लीव्स डार्क ग्रीन हो गए हैं, तो ये जनरली पोटेशियम की डिफिशियंसी है। या फिर चैम्पेरस में भी यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ के प्लांट्स में जनरली डार्किश नहीं, कलर लाइट है, जबकि जब ये पोटेशियम की डिफिशियंसी तैयार हो जाती है तो ये डार्क हो जाते हैं। तो फॉस्फेट और एक करता है कि इसका ग्रोथ स्टंटेड कर देता है, प्लांट्स की ग्रोथ स्टंटेड कर देता है, और कॉम्पैक्टनेस भी कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉस्फेट जहाँ डिफिशिएंट है उसमें थुजा में कॉम्पैक्टनेस उसका, क्योंकि थुजा प्लांट में कॉम्पैक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो यहाँ पे वो उसकी कॉम्पैक्टनेस कम कर देता है। पोटेशियम, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स है हम देख रहे हैं, तो उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पोटेशियम सबसे जरूरी है, याद रखिए, क्योंकि पोटेशियम जो है वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है प्लांट में, और जिसकी वजह से हो क्या जाता है कि स्पेशली विजुअल कैरेक्टर्स जो है, अपीयरेंस से रिलेटेड कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ये पोटैश कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से पोटैश बहुत जरूरी है। आपको पोटैश के सप्लीमेंट के बारे में नर्सरी मंथ्स को स्पेशली, आप शायद नाइट्रोजन दे रहे हो, लेकिन पोटैश के बारे में भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। तो पोटैश डिफिशियंसी में आप अलग अलग लीव्स में देख सकते हैं कि कैसे नेक्रोटिक्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसे नेक्रोसिस डेवलप होना चालू हो गया तो प्लांट्स का ओवरऑल अपीयरेंस खराब होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिस्टेल पाम में इस तरह से नेक्रोसिस हो जाता है। तो आप ऐसे प्लांट्स आपके नर्सरी में या घर पे रखोगे तो कोई इसको लाइक नहीं करेगा। या फिर रबर प्लांट में इस तरह से लीव्स पे नेक्रोसिस डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद सल्फर, तो सल्फर में जनरली यूनिफॉर्म क्लोरोसिस मिलता है देखने को। शुरुआत में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई पूरा प्लांट का प्लांट सल्फर की डिफिशियंसी वजह से क्लोरोसिस हो, पेल ग्रीन हो गया है, और उसकी ग्रोथ भी स्टंटेड रह चुकी है, फ्लावरिंग नहीं है। उसी तरह हम पाम में भी देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ और अपीयरेंस टोटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है इमोबाइल न्यूट्रिएंट होता है, तो जनरली इसमें भी नेक्रोसिस, जनरल मैग्नीशियम डिफिशियंसी में टेल येलोइंग जो है वो शुरुआत हो जाती है, टिप की तरफ से बेस की तरफ बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे पूरा प्लांट वेन्स को छोड़ के पूरा क्लोरोसिस हो जाता है। ये हम क्लोरोसिस सिसाल्पिनिया और अदर प्लांट्स में जनरली देखते हैं। क्या हो जाता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो प्लांट्स धूप में रखते हैं उनके लीव्स न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से उसमें क्लोरोसिस हो रहा है, या कि हाई सनलाइट की वजह से हो रहा है, ये बहुत बार समझ में नहीं आता। लेकिन उसके लिए आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जनरली सनलाइट की वजह से अगर क्लोरोसिस हो रहा है तो वो पूरे एंटायर प्लांट में होता है, जबकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का ट्रिगरिंग पॉइंट पर्टिकुलर पार्ट होता है प्लांट का, जहां से वो शुरुआत होता है, धीरे धीरे करके वो पूरे प्लांट में फैलता है। यहाँ पे आयरन और मैंगनीज की डिफिशियंसी के सिम्टम्स देखोगे तो आयरन में धीरे धीरे करके पूरा प्लांट यहाँ पे क्लोरोटिक हो जाता है, रोजेस के लीव्स हैं। उसके बाद कैल्शियम, ये भी एक जरूरी न्यूट्रिएंट है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जरूरी होता है, क्योंकि ये सेल बाइंडिंग से रिलेटेड काम कर रहा होता है, जिसमें बहुत डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोसिस होना एक आम बात है। जनरली कैल्शियम और आयरन की क्लोरोसिस दिखने में वैसे इनिशियली एक जैसी होती है, लेकिन जब हम देखें तो आयरन की क्लोरोसिस से शुरुआत ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम की क्लोरोसिस में टॉप बर्ड्स में इनिशियल फेज में वो शुरुआत हो जाता है। बोरॉन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जब हम बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, तो लीव्स का ट्रिकलिंग होना एक सबसे जरूरी है। मतलब लीव्स का एजेस जो है टर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं बोरॉन की डिफिशियंसी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव्स के एजेस जो है वो टर्निंग शुरू हो जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, स्पेशली जब बोरॉन की डिफिशियंसी हो तब। और दूसरी बात यह है कि जब बोरॉन की डिफिशियंसी होती है तो रूट्स भी डेवलपमेंट बहुत अफेक्ट होती है, वो बहुत शॉर्ट बन जाते हैं और बहुत ही थिक बन जाते हैं और बहुत कम रूट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसलिए बोरॉन बहुत जरूरी होता है जब आपको इनिशियल लीव्स के ऐसे रोलिंग दिखना हो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में मेजरली यही सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको बोरॉन की डिफिशियंसी है समझ के उसको बोरॉन अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जिंक, तो जनरली जिंक जो है यंग लीफ में क्लोरोसिस करता है। जनरली रिसेंटली मैच्योर जो लीव्स हो
यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोरोसिस ग्रोइंग बर्ड में शुरू हो जाता है। कुछ बार ये बर्ड्स जो है नेक्रोटिक होके डाई भी हो जाते हैं। यंग लीव्स में ये इनिशियल सिम्टम्स इसके इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम में भी जनरली हिबिस्कस में डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके ऑब्जर्व हुए हैं। तो लीव्स जो है वो लीव्स में मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी की केसेस में लीव्स जो है वो उसमें सिम्टम्स जो क्लोरोसिस के सिम्टम्स है इनिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली हम जब सॉइललेस मीडिया में प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं तो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी जनरली ज्यादा ऑब्जर्व होती है, क्योंकि हम सॉइल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मॉलिब्डेनम ऐसे भी प्रेजेंट होता है तो वो सफिशिएंट होता है। लेकिन हम सॉइललेस कल्टीवेशन में जाते हैं तो हम एडिशनल मॉलिब्डेनम अगर ऐड नहीं करते पॉटिंग मिक्सचर्स में या फिर पॉटिंग के बाद, तो ये सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। जनरली ये जो मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी की सिम्टम्स है आपको नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स और आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स के साथ थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो तभी ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जनरली इसमें प्लांट्स की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, लीव्स छोटे हो जाते हैं और क्लोरोसिस जो है वो लीफ मार्जिन से स्टार्ट होता है मॉलिब्डेनम के केस में। इसके बाद कॉपर, तो जनरली कॉपर अगर हम देखें तो कॉपर के केस में डिस्टॉर्शन, लीफ का डिस्टॉर्शन यहाँ पे देख सकते हैं और स्टंटेड ग्रोथ, ये दो बेसिक उसके सिम्टम्स है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बहुत सीवियरली अफेक्ट हो जाता है। जनरली इंडोर प्लांट्स में कॉपर डिफिशियंसी की वजह से इंडोर प्लांट्स जो है उसमें तुरंत ग्रोथ अफेक्ट होने चालू होते हैं, प्लांट डिटोरेट होना चालू हो जाते हैं, कर्लिंग होना लीव्स का थ्रू द एजेस भी स्टार्ट हो जाता है, फिर क्लोरोसिस चालू हो जाता है और जो न्यू लीफ आ रही है वो लेंथ में शॉर्ट बनना चालू हो जाते हैं और अपवर्ड रोलिंग, इनसाइड रोलिंग, लीव्स को इनसाइड रोलिंग चालू हो जाता है। कुछ कुछ प्लांट्स में अगर सीवियर डिफिशियंसी हो तो टर्मिनल बर्ड्स भी मर जाते हैं। उसके बाद आयरन डिफिशियंसी, जनरली आयरन डिफिशियंसी रोज और अरेका पाम, पाम्स में भी बहुत ज्यादा, फिस्टेल पाम में देखी जाती है ज्यादातर। जनरली पूरा एंटायर लीफ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोटिक हो जाता है, वेन्स सिर्फ रहे बीच का पोर्शन पूरा क्लोरोटिक हो गया है। तो जनरली ट्रीज में भी ये सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि जब फॉल सीजन आता है, लीफ जब गिरते हैं, पत्ते गिरने का सीजन आता है, अगर उसके साथ एक कोइंसाइड हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना, या फिर अदर सीजन में आ जाए तो इजी होता है कि भाई उस सीजन में वो ऐसे लीफ होने नहीं चाहिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। मैंने शुरुआत में एक फोटो दिखाया था जिसमें दो ट्रीज दिखाए थे आफ्टर एंड बिफोर ट्रीटमेंट, तो वो आयरन डिफिशियंसी थी कि पूरा एंटायर ट्री जो है वो पेल ग्रीन दिख रहा था, वो आपको विजुअली बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आयरन डिफिशियंसी की वजह से आगे की जो ग्रोथ है वो बहुत सीवियरली अफेक्ट हो जाती है इस प्लांट से। हो गई डिफिशियंसी की बात। अब थोड़ी टॉक्सिसिटी देख ले तो जनरली विल्टिंग, लीफ डिटॉर्शन, टिप बर्निंग और अपटेक रिड्यूस होना ये जरूरी चीजें इसमें हो जाती है। तो थोड़ा एक्सेसिव न्यूट्रिशन ये भी एक जरूरी चीज है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है, जिस केस में लीफ की एजेस बर्निंग होना ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। कुछ कंडीशंस में अगर आपने बहुत एक्सेसिव न्यूट्रिशन दिया है तो रूट बर्निंग भी हो जाता है, जिसमें लीफ विल्टिंग तुरंत शुरू हो जाता है। सॉल्ट्स अगर आपके ज्यादा हो गए हैं या फिर सोडियम कंटेंट आपका मीडिया में ज्यादा है तो लोअर लीव्स में सबसे पहले आपको विल्टिंग, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। उसके बाद अमोनिया की टॉक्सिसिटी जनरली लीफ डिस्केशन और बर्ड नेक्रोसिस से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स में क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों हो जाते हैं, रूट की टिप्स बर्न, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ ये सीवियरली अफेक्ट हो जाती है अमोनिया की टॉक्सिसिटी की वजह से। जनरली जब हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी नाइट्रोजन हम दे रहे हैं वो आधा ही नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी वजह से अमोनिया की टॉक्सिसिटी प्लांट्स में
ना हो, बाकी जो हम नाइट्रोजन देने वाले हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। मैंगनीज एंड आयरन टॉक्सिसिटी, जनरली जब मैंगनीज या फिर आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो जनरली स्मॉल नेक्रोटिक डॉट्स जो है वो लीव्स पे देखने को मिलते हैं। हमें ये थोड़ा वेरिएशन टाइप लगता है, लेकिन जो वेरिएटेड लीव्स है उसमें आपको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे तो पता चल जाए कि भाई ये एक्चुअली क्या है। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो लीफ डाइंग होना चालू हो जाती है, वो उस लेवल तक बढ़ जाती है कि रूट्स उसके काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए आपको इनिशियल फेजेस में वो भी पता चलना चाहिए। बोरॉन टॉक्सिसिटी, जनरली बोरॉन और फ्लोरीन ये दोनों की टॉक्सिसिटी के सिम्पटम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो बोरॉन की डिफिशियंसी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बोरॉन की डिफिशियंसी है जिसमें नेक्रोसिस हुआ है, प्लांट डाई हो रहा है, जबकि ये है ये फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी, ये डिफिशियंसी नहीं टॉक्सिसिटी है। ये बोरॉन की टॉक्सिसिटी है, ये फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी है। दोनों में नेक्रोसिस होता है, लेकिन जब बोरॉन की वजह से नेक्रोसिस होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि क्लोराटिक हेलोलेशंस तैयार हो जाते हैं, ऐसे राउंड राउंड हेलोलेशंस बीच में ही तैयार हो जाते हैं। जबकि फ्लोराइड टॉक्सिसिटी में जो लेशंस तैयार होते हैं उसके साइड में थोड़ा पर्पलिश कलर के, मतलब फ्रेश लीव्स या लाइव सेल्स जो है उसके साइड में पर्पलिश पैचेस आपको दिखते हैं, जबकि ये बोरॉन की टॉक्सिसिटी में नहीं दिखती। उसके बाद कॉपर टॉक्सिसिटी, जनरली कॉपर की टॉक्सिसिटी पाम्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जनरली एक्सेसिव माइक्रोन्यूट्रिएंट मीडिया में हो या फिर आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज करें जिसमें कॉपर ज्यादा हो तो ये आपको जल्दी से पता चल जाता है। जनरली ये फंगल सिम्पटम्स के साथ भी मैच हो जाती है कॉपर टॉक्सिसिटी, नेक्रोसिस होता है। उसके बाद फ्लोराइड टॉक्सिसिटी में भी नेक्रोसिस एजेस में चालू हो जाता है और बाद में धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। जनरली फ्लोराइड, अगर आपके इरिगेशन वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है, जनरली फ्लोराइड हम देते नहीं, लेकिन या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट में है भी नहीं, लेकिन जब आपका इरिगेशन वाटर में फ्लोराइड ज्यादा है तो उस केसेस में आपका फ्लोराइड टॉक्सिसिटी आपके प्लांट्स को में देखने को मिल सकता है। देन सॉल्ट, सोडियम, ये सब हो गया कि हमें टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी प्लांट्स में जो मिलती है वो थोड़ा मैंने बताया यहाँ की जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि आपको पता चले कि भाई क्या होता है एक्चुअली। अब हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें हैं जो हम मार्केट से लाते हैं, एक को मैन्योर्स कहते हैं, दूसरे को फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो जनरली मैन्योर्स जो है वो प्लांट और एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस से बनते हैं और फर्टिलाइजर्स है मोस्टली ये इंडस्ट्री ओरिजिनेट होते हैं या फिर केमिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स हम देखते हैं वो फिर FYM हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जनरली बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको कहा जाता है, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में देना होता है प्लांट्स को। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स आते हैं जो प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन में होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, जो बेसिकली 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को लगते हैं। अदर देन दिस वहां पे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो ऑयल केक्स, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो पार्ट बचता है, जो ऑयल केक्स हम कहते हैं, उसमें कैस्टर, करंज है, महुआ है या फिर नीम केक्स है, कोकोनट का केक है या फिर ग्राउंडनट केक्स है, सिसम केक्स है, जो हम एज एन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उसके फोटोग्राफ्स मैंने बताए हैं कि भाई वे अलग अलग केक्स जो है, कैस्टर केक, करंज केक है, ग्राउंडनट केक है, तो वो मार्केट से आप कैसे। उसके बाद एनिमल ओरिजिन के ब्लड मिल, जनरली स्लॉटर हाउसेस में जो ब्लड कलेक्ट होता है उससे ब्लड मिल मिलता है, मीट मिल और फिश मिल, ये दोनों ही जो वेस्ट रहता है स्लॉटर हाउसेस या फिश इंडस्ट्री का, उसको डिकम्पोज करके इसको बनाया जाता है। हॉर्न और हुक मिल, जो हॉर्न्स होते हैं और पैरों के हुक्स होते हैं एनिमल्स के, उससे ये बनाए जाते हैं। ब्लड मिल है, ये हॉर्न और हुक मिल है, ये मीट मिल है और फिश मिल है। ये
उसके बाद फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसमें 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज भी किया गया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो लिस्ट दी है ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है, जो पानी में डिजॉल्व घोल के हम फर्टिगेशन के थ्रू या फिर स्प्रे के थ्रू दे सकते, यही सिर्फ दिखाए गए हैं। ये अलग अलग ग्रेड्स है, 19 या हो या फिर 114211 हो, ये अलग अलग ग्रेड्स है। हर एक ग्रेड का अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है प्लांट्स के डेवलपमेंट में, कब स्टेज में कौन सा डाले उसके हिसाब से प्लांट मॉडिफिकेशंस या प्लांट के डेवलपमेंट में चेंजेस हो जाते हैं और हमें उस तरह से उसको यूज करना होता है। ये उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट सम ऑफ द बैक्टीरियाज और फंगाई और माइक्रोराइजाज, जो हम जिनका रोल एक्चुअली वो कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते, बस जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल न्यूट्रिएंट सॉइल में है या मीडिया में है उसको अनअवेलेबल फॉर्म में हो, जो मिल नहीं सकता, उसको प्लांट एब्सॉर्ब कर सके, इस फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करने का काम जनरली बायो फर्टिलाइजर्स करते हैं। जनरली कुछ 5 फर्टिलाइजर्स पता है लोगों को, वही एज़ोटोबैक्टर हो, राइजोबियम हो, उसके बाद पीएसवी जिसको फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, बैसिलस या पेनिसिलियम हो, उसके बाद पोटैश मोबिलाइजर जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ फंगाई है या फिर माइक्रोराइजाज है। अभी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए भी ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं बैक्टीरिया जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मोबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सुडोमोनास जैसे स्पीसीज को प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अभी तो कुछ रिसेंट ईयर्स में जिस यहाँ पे सॉइल और वाटर का प्रॉब्लम से, मतलब हाई पीएच या फिर अल्कलाइनिटी में डेवलप होने वाले या फिर वहां पे प्लांट्स को हेल्प करने वाले बैक्टीरियाज भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो कितना डालना है, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमारे पास कम डाले तो क्या हो जाता है, ज्यादा डालो तो क्या हो जाता है, क्या क्या सोर्सेस है अपने पास प्लांट्स को प्रोवाइड करने के लिए, कितना डालना है। तो जनरली क्या कहा जाता है कि जो भी आप नर्सरी, इंडस्ट्री, गार्डन्स, पॉट प्लांट्स में न्यूट्रिएंट दे रहे हो उसका रेशियो जनरली 2:1:1 या फिर 2:0.5:0.5 NPK है। अब ये वैरी होता है कि आपका पर्पस क्या है, आप कहाँ इस जगह पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में इसको इस तरह से भी मॉडिफाई किया जाता है कि 2:0.5:1। ये एक रेशियो है, इस रेशियो में आपको देना है। ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर नहीं, ये एक रेशियो है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, जो 3 चीजें हम डालने वाले प्लांट को, बेसिक एलिमेंट्स या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, तो इसका ये रेशियो है 2:1:1। या फिर उसको हम फास्फोरस जो बीच वाला है उसको हम 0.5 भी कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि पोटैश बहुत जरूरी चीज है जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन है, पोटैश, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन, सल्फर और मैग्नीशियम, ये हमारे पास 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो नर्सरी, लैंडस्केप इंडस्ट्री या गार्डनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट के विजुअल अपीयरेंस और उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो कितना डालना है, ये हो गया किस रेशियो में डालना है, कितना डालना है। तो हमें 1 kg नाइट्रोजन डालना है 1000 स्क्वायर फीट कि अगर आपका रूट जोन हो, रूट जोन जो जनरली कहा जाता है कि प्लांट्स का जो कैनोपी है, प्लांट का जो कैनोपी है उससे 1.5 टाइम्स जनरली रूट जोन होता है प्लांट का। तो आपको अगर 1000 स्क्वायर फुट का प्लांट का रूट जोन है तो आपको 1 kg नाइट्रोजन डालना है। उसी बेसिस पे आगे के अगर 2:1:1 रेशियो हम पकड़े तो अगर समझ लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का रूट जोन है तो आपको 2:1:1 डालना है। तो वहां पे हो गया 1 kg, ये 2 हो गया, मतलब 1 kg आप नाइट्रोजन डाल रहे। अब 1 पोर्शन आपको फॉस्फेट डालना है और फास्फोरस और पोटैश डालना है, तो 0.5 kg आपको
फास्फोरस और पोटैश डालना है। और जब हम स्प्रे पे जा रहे हैं तो अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स का क्रॉप के ग्रोथ के हिसाब से 0.1 to 1% आप स्प्रे कर सकते हैं, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई आपका रूट जोन कितना है? तो यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ दिया है कि भाई आपको कैनोपी मेजर करनी है प्लांट को, एटलीस्ट 2 डायरेक्शन में। आपको हर प्लांट चारों डायरेक्शन में एक ही ग्रोथ नहीं मिल सकती, तो आपको ऑन एन एवरेज निकालने के लिए 2 डायरेक्शंस में प्लांट की कैनोपी मेजर करनी है। तो इसको हम रेडियस कहेंगे। भाई इस साइड में एक मेजर की, वो फिर अपोजिट हो सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग आपको, लेकिन सेंटर से मेजर करना है। तो यहाँ पे आपको रेडियस मिलेगा। तो रूट जोन का एरिया निकालने के लिए आपको 3.14 जो पाई वैल्यू है उसको रेडियस से, 2 साइड के रेडियस से, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं, डिपेंड है कि प्लांट की कैनोपी कैसे। अगर राउंड कैनोपी है तो आपको दोनों साइड में एक ही वैल्यू मिल रही तो अच्छा है। अगर आपको 2 साइड में अलग अलग वैल्यू मिल रही तो ये 2 अलग अलग रेडियस आपने डाले और जो वैल्यू आई, समझ लीजिए कि इस प्लांट का सेंटर से 1 साइड 5 फीट इतना ग्रोथ है, दूसरी साइड में 4 फीट है। हम अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करें भाई 3.14 इंटू 5 इंटू 4 तो हमें आंसर मिलेगा कि भाई 62। तो वो 62 स्क्वायर फीट हुआ, राइट। हमें आंसर मिला 62। तो 62 स्क्वायर फीट टोटल हुआ। उस 62 स्क्वायर फीट को हम 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से डिवाइड करेंगे और जितना क्वांटिटी आएगा वो नाइट्रोजन, और डिपेंडिंग हम आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैसे डालना है? तो जनरली जब स्क्वायर्स हो या फिर आपका लंबे बेड्स बने हो तो जनरली आपको प्लांट को छोड़ के 6 इंच दूर, जनरली प्लांट की कैनोपी है, कहा जाता है कि प्लांट के एग्जैक्ट कैनोपी के नीचे डालना चाहिए, या फिर ऐसे बेड्स में डाल रहे तो एटलीस्ट 6 इंच दूर आपको जो कि फर्टिलाइजर है वो थोड़ा आप डालने से पहले आप थोड़ा सा स्लाइड स्ट्रेंच निकालें। ऐसे सिर्फ ऊपर मत डालिए, उसको डालना है तो आप छोटा सा गड्ढा टाइप सिर्फ खुदली से या फावड़े से थोड़ा सा ट्रेंच बना लो, उसमें डालो और फिर से मिट्टी डाल दो ताकि वो वाटर से इजीली वाटर के इजी कांटेक्ट है। जब आप गड्ढे में डाल रहे हैं या फिर नया रीपैटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैन्यूर्स FIM या कंपोस्ट डालना है। उसके साथ आपको फास्फोरस ऐड करना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। प्लांट के हिसाब से 200 ग्राम से 2 kg तक आप ऐड कर सकते हो। प्लांट की एज, कितने एज का प्लांट लगा रहे हो, 1 साल एज का प्लांट डाल रहे हो तो 200 ग्राम डालना चाहिए। अगर आप 3 या 4 साल पुराने प्लांट डाल रहे हो तो 2 kg एटलीस्ट आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेजेस में जो रूट डेवलपमेंट के लिए उसको फॉस्फोरस चाहिए वो तुरंत मिल सकता है। उसके बाद पॉट्स में जब डाल रहे हैं तो आप जो फर्टिलाइजर है वो डायरेक्टली पॉट्स में डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर पानी में मिक्स करके वो पानी अप्लाई करना है। बस पानी में मिक्स करके जब आप एज एन इरिगेशन वाटर की तरह दे रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो हम रेगुलर इरिगेशन करते हैं तो लोगों को आदत होती है जब तक पॉट के बाहर पानी ना आए तब तक डालते रहो, लेकिन जब आप फर्टिलाइजर का पानी डाल रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि पानी बाहर नहीं आना चाहिए। क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल है तो वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, उसमें नहीं रहेगा। इसलिए आपको इतना ही डालना है कि वो पानी उस गमले में रहे, उसके बाहर नहीं निकले। और जब स्प्रे में डाल रहे हो तो आप स्प्रे के हिसाब से डाल सकते हो, प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हो। अब कब, कितने दिन के इंटरवल में करना है? जब पॉट प्लांट्स है तो जनरली कहा जाता है कि 1 मंथ के इंटरवल में आपको उसको न्यूट्रिशन डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होम गार्डन जिनके घर में पौधे हैं उनकी कंप्लेंट्स होती है कि हमने गमले में पौधे लगाए हुए हैं, उसको फूल ही नहीं आते, उसको फल ही नहीं आते। और हम उससे पूछे कि भाई आप उनको खाद कब दिया या फिर कुछ खाद वगैरह डाले? हाँ हमने डाला था, 6 महीने पहले डाला था, 1 साल पहले डाला था। तो ऐसे नहीं होता। जब वो प्लांट को लिमिटेड स्पेस है, उस स्पेस में बढ़ना है तो न्यूट्रिशन भी लिमिटेड होती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। इसलिए आपको एटलीस्ट 1 इन अ मंथ डालना है। तो कितना डालना है, कैसे डालना है पहले ही बताया। लॉन्स में डालना है तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अब लॉन्स में जब आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हो तो सबसे जरूरी बात ये है कि यूरिया कभी भी मत यूज कीजिए।
या फिर ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूरिया कभी भी मत यूज करिए जब आपको एज एन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन देना हो, क्योंकि यूरिया से क्या हो जाता है कि लीफ है जो वो लीफ सॉफ्ट हो जाती है, उसकी पर्जिडिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से जो सकिंग पेस्ट है या डिसीजेस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप अदर देन यूरिया 13045 है फर्टिलाइजर, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट आप यूज करिए, आप कैल्शियम अमोनियम सल्फेट यूज कीजिए, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज कीजिए, यूरिया का यूज मत कीजिए, क्योंकि यूरिया की वजह से आपका इन्फेक्शन, पेस्ट डिसीज इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो जब हम लॉन्स के लिए आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो तो ध्यान रखना है कि आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो उसको। तो जनरली अगर ब्रॉडकास्ट करना नहीं है तो आप स्प्रे ले सकते हो। जनरली 19 का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप 15 डेज में, जब वहां पे आप कमर्शियल लॉन्स मेंटेन कर रहे हैं वहां पे 15 दिन में एक बार उसको स्प्रे लेना चाहिए, ताकि उसका ग्रीनिश और लैविश लुक हमेशा रहे। या फिर 12-061 जो फर्टिलाइजर है उसका स्प्रे आप ले लो 15 दिन में एक बार, ताकि वो ग्रीनिशनेस जो है वो मेंटेन रहे ओवरऑल ग्रोथ के पीरियड में। जब ट्रीज को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है? जनरली जो नेटिव स्पीसीज है या फिर हमारे यहाँ की स्पीसीज है उसमें आपको फर्टिलाइजर एक पीरियड के बाद देने की जरूरत नहीं, लेकिन जब अब नए प्लांट्स ट्रांसप्लांट किए होते तो पहले 4 से 5 साल अगर आप उसको फर्टिलाइजेशन दें तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी, डेवलपमेंट अच्छी रहेगी और उसका लुक बहुत अच्छा डेवलप होगा। जो लैंकी ग्रोथ होती है, ब्रांचेस नहीं बढ़े हुए, ब्रांचेस वीकली डेवलप हुए, ये जनरली फर्टिलाइजर की कमी की वजह से होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मिट्टी ऐसी है, वो प्लांट यहाँ पे अच्छा ही नहीं ग्रो होगा, ऐसा नहीं होता। जब फर्टिलाइजर भी कम होते तभी भी वो हो सकता है। तो कहाँ पे फर्टिलाइज करना है? ट्रीज में। तो जनरली याद रखिए कि ट्रीज को हम कहते हैं कि भाई थंब रूल है कि दोपहर में 12 बजे ट्री का शेड जहां पे गिरता है, जब सन उस ट्री के ऊपर हो, तो वो फेरी फेरी है, उसके बाहर 1 से 1.5 फीट वो एक्टिव रूट जोन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैनोपी का रिंग बनाया है मैंने, तो इस रिंग के बाहर जो सर्कल बनाया है उसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, क्योंकि ये प्लांट का एक्टिव रूट जोन है और एटलीस्ट 1 से 1.5 फीट नीचे वो फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करना है। तो आपको पूरा यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदना है, आपको बस एक बार लेना है जिससे इस प्लांट को चारों तरफ होल्स बनाने हैं, 10 से 12 होल्स, और जो क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर आप दे रहे हो उसको इक्वली डिवाइड करके 10-12 होल्स में ऐड करके वाटर देना है, जिसके वजह से वो एक्टिव रूट जोन में, जो ट्रीज का एक्टिव रूट जोन वहां तक पहुंच जाएगा और वो ट्रीज इजीली उसको एब्सॉर्ब कर पाएंगे या अवेलेबल फॉर्म में उसको मिल जाएगा। नर्सरी में हम क्या कर सकते हैं? जनरली नर्सरी में स्टार्टर सॉल्यूशन और पॉलियर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जनरली जब हम सीड्स Dr. Bahubali, please sum up in next 5 minutes. यस स्टार्टअप सॉल्यूशन 1919 का हम 0.1% से यूज कर सकते हैं जहां पे हम सीडलिंग्स रेज कर रहे हैं। पॉलियर एप्लीकेशन जनरली हम 1919 का या 12061 का हम दे सकते हैं। जब पॉट प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग लानी है तो 13045 का स्प्रे आप 0.1% से ले सकते हो। ये लास्ट ही है मेरा प्रेजेंटेशन में। तो ये स्पेशली होम गार्डनर्स के लिए है कि आप घर में कंपोस्ट बनाने के लिए, बहुत लोगों को क्यूरीज होती है, तो मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं कि भाई हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत लोगों को ये फेस होता है कि उनमें वो जो हमने वर्म्स डाले हुए हैं वो मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं? तो मोस्ट ऑफ कंडीशन सी हीट की वजह से, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, उसकी वजह से वो मरते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? एक सिंपल प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, किसी भी आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो उसके लिए। यहाँ पे मैंने कंटेनर्स दिखाए हैं, तो ऐसा एक कंटेनर ले सकते हो, या फिर आप आपके ऑयल 15 लीटर्स के ऑयल के प्लास्टिक कंटेनर से उसको ले लो, उसको साइड से होल करो। अगर आपको ऑर्गेनिक डिकम्पोस्टिंग करना है तो साइड को होल्स करो और आपका जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसमें भरो। आप ऐसे 4 से 5 डब्बे बना सकते हैं, उसमें भरो। अगर उसमें वाटर कंटेनिंग मटेरियल ज्यादा है तो आप ड्राई लीव्स वगैरह ऐड करो और इसको ऐसे पैक करके रख दो। आप पेपर भी ऐड कर सकते हो उसमें, तो वो भी डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट करने का, वाटर एब्सॉर्प्शन अच्छा करेगा जो एक्सेसिव है।
तो एक आपको ड्राई कंपोस्ट मिलेगा। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में लिक्विड कंपोस्ट बना, आप बस उसको बोल सकते हो, बस जो भी आपका किचन वेस्ट और डिकम्पोजल कर रहा है वो उस डिब्बे में डालते रहो। तो क्या हो जाएगा कि आप डेली डालते, बस दिन में एक बार उसका ढक्कन खोल के रखना है 5 मिनट के लिए और वापस बंद कर देना है। उसी में वो पानी जो है उसमें से लिक्विड आउट हो जाएगा और पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। एटलीस्ट 21 डेज आपको उसको रखना है ताकि पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस लिक्विड केस में होता है। जबकि आप जब इस तरह से ड्राई कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने उसको कंप्लीट कंपोस्टिंग के लिए रखना है। याद रखिए, जो भी आप कंपोस्ट प्लांट्स को डाल रहे हो तो वो आपको कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होना चाहिए। हाफ डिकम्पोज कोई भी मटेरियल आप लैंडस्केप में हो या फिर पॉट प्लांट्स में आपको बिल्कुल नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे इंसेक्ट पेस्ट वहां पे ग्रो होना चालू हो जाते हैं रूट जोन में, जिसकी वजह से भी प्लांट मर सकते हैं। जनरली अगर आप पॉट्स के लिए मैन्यूरिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप जनरली केक्स यूज करें, जो ऑयल केक्स मैंने बताए, नीम केक हो या फिर कैस्टर केक, उसका यूज करें। बोनसाई में भी उसको ही यूज कीजिए ताकि प्लांट्स को स्लोली आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। प्लांट का मीडिया का पीएच और अदर चीजें जो भी है वो भी बैलेंस रहेगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगेन मैं अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है उसकी क्वेश्चन में लास्ट में कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद आईएनए और टीम जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी। मेरा स्पीच यहाँ पे खत्म होता है। ओवर टू मनीष सर। थैंक यू। Thank you, Dr. Bahubali, for sharing a wise knowledge of nutrient management in landscape gardening. Really, the participants are very much benefited from your knowledge, for your experience. And today we have a few questions from speakers, from participants, for speakers. Swane Saab, Swane are you? Swane Saab, Dr. Swane? Uttam Swane sir. One question for you: usage of bioinsecticide in nursery sector. Bioinsecticide nursery sector, that is the Verticillium lecani Beauveria bassina, which control the sucking pest. Verticillium at the rate of 4 to 5 ml or gram per liter, which can control the sucking pest like aphids, acid, thrips. Also, we use for the larval insect Beauveria bassina 4 to 5 ml per liter. For control of the larval pest like Helicoverpa, then like any larval pest, Spodoptera hai. Then termite also. In case of termite, also use the Beauveria or Verticillium. Beauveria or Metarhizium. And in case of any disease, that part some left, any disease like wilt or any rhizoctonia or any soil disease, wilting, we can use the Trichoderma viridi in soil drenching. Yes. Another question for you: control of cockroaches in a modular kitchen. Cockroach. कॉकरोच क्या खाता है? कॉकरोच के लिए जैसे किचन मटेरियल जो है, जैसे बर्तन है हमारे घर में या तो किचन में, उसमें कुछ खाना रहता है, पानी भी रहता है। ऐसे अगर रात भर रहता है तो कॉकरोच पानी के लिए और खाने के लिए उधर आते हैं। तो क्लीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ पे कोई भी ऐसा खाना वेस्ट हुआ खाना नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे वेस्ट रहेगा वहाँ कॉकरोच आएगी। वो पहला क्लीननेस होगा, कॉकरोच आएगी, उसके बाद लिजार्ड आएगी उसको खाने के लिए। ये सब लाइफ साइकिल रहती है। पहले वो क्लीननेस इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम जहाँ पे अगर आपको जैसे इंसेक्टिसाइड यूज करना है, जो सिंथेटिक पैराथ्राइड वाला जो इंसेक्टिसाइड जैसे डेल्टा मिथाइल साइपरमेथ्रिन, वो आप बाहर यूज कर सकते, किचन में नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल जाता है वहाँ पे कर सकते, ऐसे कर सकते। लेकिन क्लीननेस इम्पोर्टेंट है। और मार्केट में कुछ ऐसा स्टिकी सब्सटेंस भी कुछ बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, वो हम लगा देते हैं, जैसे ट्यूब में आता है, वो ऐसी जगह पे लगा देते हैं कि वहाँ पे हमारा हाथ या कोई बर्तन ना जाए। ऐसी जगह पे वहाँ पे कॉकरोच जाता है और रात में ही कॉकरोच रहता है, एक्टिव रहता है, दिन में नहीं रहता। ऐसी जगह पे वो लगा दीजिए, ग्लू टाइप रहता है, वो लगा दीजिए, उससे वो खाकर मर जाता है।
ये कुछ कर सकते इसको आप फिफ्रोनिल जेल बोलते हैं, जो आप हैं। बर्तन, हाँ, फिफ्रोनिल जेल अब्रॉड में बहुत यूज होता है। इट इज द गुड प्रोडक्ट ऑफ द कॉकरोच, और वो आपके वहां वॉश नहीं होना है, जहाँ पे आप बर्तन नहीं लाना है, हाथ नहीं टच करना है, वहां पे आप 2-2, 3-3 इंच पे आप उसके स्मॉल स्पॉट्स कर दो, वो जेल के जैसे इंजेक्शन में भर के या कुछ भी करके, तो इट इज वेरी गुड, और वो 2 से 3 महीने तक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता। ओके, थैंक यू। राइट सर, हाँ, फिप्रोनिल जेल है, और एक उसमें बोरिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्राउंडनट जो हमारा ग्राउंडनट के अंदर बोरिक एसिड थोड़ा पानी लगाकर उसमें वेट करना है, एक रात भर उसको भिगो देना है, तो एब्सॉर्ब हो जाएगा ग्राउंडनट के अंदर। वो अगर हम रख देते हैं उसमें कॉकरोच, रेड एंट्स बहुत उसको खा जाती है ग्राउंडनट, तो वो पॉइजनस हो जाता है उसके लिए, और वो मर जाता है। One question from Avinash Kulkarni. Please, Avinash. Mr. Avinash Kulkarni. Are you audible, Mr. Avinash Kulkarni? Okay. Now I invite Mr. Mukul Tyagi Saab, Secretary INA, for a lot of things. Please, over to Mukul sir. हेलो, बहुत अच्छी तरह से आपने आज मॉडरेटर की भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्पीकर्स का, प्रोफेसर उत्तम सहानी साहब का, डॉक्टर बाहुबली साहब का। आज का जो टॉपिक था पेस्ट डिजीज एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, बहुत ही करंट और बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल रहा है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ नर्सरी वालों के साथ में, प्लांट्स लवर के साथ में प्रॉब्लम आती है कि हमारी पत्ती खराब हो रही है, टहना खराब हो रहा है, या प्लांट डेवलप नहीं कर रहा है ढंग से, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई इसको क्या डिजीज है, इसमें क्या इसका उपचार करें। तो उसका सारा हमको आज जानकारी मिली है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे स्पीकर्स का, और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे व्यूअर्स का, जिनका लगातार हमें सहयोग मिल रहा है। हमारे इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर YP सिंह साहब, जिनके सतत प्रयासों से ये सीरीज सीड्स फॉर फ्यूचर के तहत वेबिनार चल रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ इसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू। हेलो, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके ओके। एक क्वेश्चन है। हेलो, Dr. Manish, you are on mute. हेलो। हेलो, यस प्लीज। सर, आपने स्नेल्स के बारे में पूछा। जैसे हमारे पास वाटर लिलीज या वाटर प्लांट्स जितने होते हैं उसमें स्नेल आ जाती है, तो उसे हम रिमूव करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हेलो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो। ओके, आई रिक्वेस्ट। हेलो। Yes, go ahead, ma'am. You're audible. मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अपने यहाँ वाटर लिलीज हमारे यहाँ है, वाटर प्लांट्स जो है उसमें स्नेल बहुत आ जाती है और उसके पत्ते पूरे स्नेल्स खा जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें बताइए ना, हम क्या यूज कर सकते हैं? जो स्नेल आ जाती है, स्नेल के लिए देखिए, एक तो वो रात में एक्टिव रहती है। जी हाँ। अगर छोटा आपका है, मतलब घर में छोटा गार्डन है, तो हैंड पिकिंग रात में कर सकते हो, वो दिखाई देगी। 2 तरह की स्नेल रहती है, एक तो शंख वाली रहती है और बिना शंख की भी रहती है। जी हाँ, फिर मैंने एक भी बताया था आपको, अगर जो टोबैको है ना, टोबैको डस्ट, वो आपके यहाँ मिलेगी कि नहीं मालूम नहीं, कुछ जगह मिलती है, मिल जाएगी। तो वो अपन वाटर प्लांट्स में डाल सकते हैं? जी, वो वाटर प्लांट्स में डाल सकते हैं। वाटर प्लांट में जहाँ पे आप पत्ते पे डाल दीजिए, जहाँ पे वो चलेगी। पानी पे अंदर गई तो उसमें कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, बराबर। ऐसा लोटस है आपका, वाटर लिली जो भी है, उसके पत्ते को डाले, पत्ते ऊपर आती है ना। जी हाँ। हाँ, और जहाँ पे वो बाउंड्री रहेगी, है ना, वहां पे डाल दिए। उसके ऊपर अगर वो चलती है तो रात में उसको कहाँ डालना है, जब रात में वो आएगी, एक्टिव होगी, और थोड़ा भी टोबैको डस्ट पड़ता है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो 10 मिनट के अंदर वो मर जाती है। 10 मिनट, केवल 10 मिनट में। ठीक है। वो दूसरा इलाज है।
तीसरा मैं बता दूं आपको, थर्ड, मेटाल्डिहाइड नाम का एक आता है, ये मार्केट में आता है, अवेलेबल इंसेक्टिसाइड। वो सॉलिड में रहता है, छोटी सेव जैसा आकार रहता है, सेव है ना, बड़ी सेव जैसा। उसको डालिए, मतलब वो गीला जगह पे नहीं काम करेगी, ड्राई जगह पे काम करेगी। ओके। गीला हो गया तो उसका काम नहीं आएगा। तो ऐसे कि जहाँ पे वो आती है, आप देखना कैसा एरिया आपका, उस जगह पे आप शाम के टाइम में डालना, वो उसके स्मेल से वो खाएगी और वो तुरंत मर जाती है। वो ऐसे अलग अलग उपाय करके आप देखना, उसमें कंप्लीट। सर स्पाइडर क्वेश्चन। सर माई सेल्फ अविनाश कुलकर्णी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। एक साइड पर बॉटल ब्रश लगाए हुए थे, तो जिसका विल्टिंग हो रहा था। नॉर्मली मैंने देखा वो साइड पर, तो पहले प्लेन जगह पर वो प्लांटेशन किया था, बाद में जैसे ही स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हुआ लॉन्स का, तो भराव कर दिया गया। तो उससे 1.5-2 फुट उसका जो ट्रंक है वो भराव में चला गया। बाद में उसका विल्टिंग होने लगा, तो मैंने सब वो भराव आजू बाजू का निकाल कर उसको बावेस्टिन और 19 का ड्रेंचिंग करने को बोला। तो 1-2 पेड़ थोड़े से उनको लीफ आ रही है अभी नहीं, तो और कुछ आपके हिसाब से कुछ करना चाहिए? ठीक है सर, उसमें जो माटी का भराव आ रहा है ऐसे आप बोल रहे हैं ना, माटी आ गई ना उसके ऊपर। यस सर, यस सर। जो नॉर्मली जो स्टेम रहती ना, वो एक लेवल रहता है, उसके ऊपर अगर 2-3 फुट अगर माटी डालते तो भी कभी कभी क्या होता है, माटी और उससे पानी अगर डालते तो गीला होने के कारण वो सड़ जाता है पोर्शन, वो बार्क का पोर्शन ना। यस सर, यस तो सर। उसमें आपको अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी आप डालेंगे, उसके पानी के साथ डालकर ड्रेंचिंग करना है ट्राइकोडर्मा। ड्रेंचिंग करेंगे तो जो भी सॉइल फंगस है उसको किल करेंगे, ट्राइकोडर्मा किल करेंगे। एक उपाय ये आपको, मतलब ऐसे अभी अभी बारिश का सीजन, मतलब अभी बारिश शुरू हो रहा है, अभी नीचे मॉइस्चर चाहे उसके समय वो ट्राइकोडर्मा काम करेगा, समर में नहीं करेगा। अभी डाल सकते हैं। आपने जो कार्बेंडिजिम डाला ना, बाविस्टिन जो बोल रहे, वो भी काम करता है केमिकली, कार्बेंडिजिम वो भी अच्छा काम करेगा, लेकिन वो उतनी देर तक ही करेगा, मतलब 8-10 दिन तक इफेक्टिव रहेगा। और ट्राइकोडर्मा डालोगे तो लॉन्ग ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मतलब अभी अगर बारिश के समय, अभी पहला बारिश अगर आपके यहाँ आया होगा, अभी यहाँ पे तो हो गया था, देखना नहीं तो जून में जैसा पहला बारिश आएगा, माटी थोड़ी गीली होगी, तब ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग करना। उसका जो प्रमाण है वह 10 लीटर पानी में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालना है। 10 लीटर में 50 ग्राम। ओके सर। 2 लीटर में 500 ग्राम, आधा किलो। ओके सर, ओके सर। और एक सर मेरा एक प्रश्न सर, मैं हेलो। ओके रश्मि मैडम। जी जी जी। एक्चुअली सर जो मॉड्यूलर किचन वाला क्वेश्चन था वो मैंने ही किया था। हमारे पर्सनल है ये, मतलब मेरे किचन में बहुत ज्यादा कॉकरोच का प्रॉब्लम है। तो जो फिप्रोनिल बात कर, क्या इजीली अवेलेबल है सर मार्केट में? हाँ अवेलेबल है जी। बायर का एक मैक्स फोर्स करके प्रोडक्ट आता है मैम, आप थोड़ा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, और कैसे यूटिलाइज होता है। बायर का मैक्स फोर्स, MAXFORE मैक्स फोर्स, वो फ्रिफ्रोनिल जेल है, और कोई यहाँ जनरिक भी मिलता है इंडिया में, पर आप जरा देख लेना यूट्यूब पे, और वो इजी अमेजोन या कहीं से अभी आपको मिल जाएगा। पर आप सबसे पहले इसको कैसे यूटिलाइज करना वो सीख लेना, क्योंकि आप किचन में कर रहे हो और दिस इज पेस्टिसाइड, तो बहुत केयर करके आपको करना है। ओके ओके। अच्छा, और क्या लोकल लेवल पर कुछ और रेमेडीज? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। ओके थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू मैडम। प्लीज टाइम इज वेरी लिमिटेड। सर मेरा क्वेश्चन है मिस्टर बाहुबली के, क्योंकि जनरल सबको काम आएगा इसलिए। सर हम लोग छोटे, डॉक्टर बाहुबली इज देयर? या सर। ओके सर, हम लोग जो छोटे गमले यूज करते हैं घर में ऑर्नामेंटल इंडोर प्लांट में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ना वो कार्बन की रहती है। तो हम लोग इजी कार्बन को कैसे मेंटेन करें, उस पर भी आप थोड़ा फोकस करो, कि ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, वो सब कॉमन क्वेश्चन है जो घर में किसी को याद नहीं आता कि भाई कार्बन की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है हमारा। डस्ट जो आप प्लांट की लीव्स पे जो डस्ट आपको मिलती है वो। यस। हाँ, तो
क्या है कि हर प्लांट्स का डस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग है, तो इसमें आपको ऑप्शन तो कोई है नहीं, आपको डस्टिंग या फिर आपको उस लीव्स को साफ गीले कपड़े से साफ करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो इस डस्ट कंडीशंस में भी ग्रो होते हैं। अपने पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है इंडोर प्लांट्स में भी कि जो आप ऐसे डस्ट कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपका प्लांट रोड के साइड में वहां पे ज्यादा मिलेगा, नहीं तो जनरली डस्टिंग का प्रॉब्लम इंडोर प्लांट्स में, क्योंकि घर के अंदर डस्ट बाहर से ही आती है, इसलिए उतना दिक्कत नहीं होती। आपको एक ही चीज काम कर सकते हैं, आपको वंस इन ए वीक आपको डस्ट गीले कपड़े से पत्तों को साफ करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। स्पाइडर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्पाइडर्स के लिए? हेलो सर, I request, time is very limited, sir. I request you please write your question to INA website, INA. We will provide all the possible answers. And your speakers also give a number, please, on chat box. I request both the speakers, please give your number on chat box, so participant can personally contact you or call you. Thank you, sir. The time is very limited. Now we are wrap up the session. Next webinar, which is on the importance and future of medicinal plant, is scheduled on 29th, next Saturday. Till stay at home and take care. Thank you, sir. Okay, thank you everybody. Good said, okay, thank you.